Welcome to Sarabjit English classes. Today we are going to do third chapter of class 7th, Birbal's Khichdi. Before doing the chapter, first we are going to discuss word meanings, some of the difficult spellings. So let's begin with the spellings. First, glowing. Glowing means ਚਮਕਣਾ. Starving. Starving ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ. Third word is frozen. Frozen ਦਾ ਭਾਵ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣਾ. Extreme. Extreme ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ. Deserve ਯੋਗ ਹੋਣਾ. Consider. Consider ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ. Warmth. Warmth ਵਾਰਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ. ਵਾਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਗਰਮਾਹਟ. ਬ੍ਰਾਹਮਣ. ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. So let's begin with the lesson Birbal's Khichdi. You have already listened many story about Birbal and Akbar's wisdom. So now it is one of the stories. Birbal's Khichdi. Khichdi ਆਪਾਂ stew ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. It was a winter time. ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ. The pond and lakes near Akbar's palace all were frozen. ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ. ਕੀ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ. ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਵੀ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੰਟਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ. ਸੋ ਅਕਬਰ ਐਟ ਅਕਬਰਸ ਕੋਰਟ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਆਸਕ ਬੀਰਬਲ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਥਿੰਗ ਬੀਰਬਲ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਏ ਮੈਨ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर ਮਨੀ? ਬੀਰਬਲ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀਰਬਲ ਰਿਪਲਾਈਡ, ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੈਸ ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ. ਮੈਜੈਸਟੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਆਰਡਰ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ, ਤਦ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ, ਤਦ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ. ਪ੍ਰੂਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ. ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬੀਰਬਲ ਕੇਮ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੀਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਪੂਅਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ. ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਜ਼ ਸਟਾਰਵਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਮਨੀ ਟੂ ਫੀਡ ਦੈਮ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਬੀਰਬਲ ਸੈਡ ਟੂ ਦ ਕਿੰਗ, ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਾਰ ਦ ਸੇਕ ਆਫ ਮਨੀ, ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਸੋ ਫਾਰ ਦ ਸੇਕ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ. ਅਕਬਰ ਆਸਕਡ, what will he do what I say? ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, will he do what I say, ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ. anything if I get some money to feed my family, said the poor Brahman before Birbal could reply. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ
कुछ भी कर सकदा। द किंग सेड टू द ब्राह्मण, स्टैंड इनसाइड द फ्रोजन पॉन्ड all through the day, all through the night, all through the night without any clothes, and I will give you 2000 gold coins। भी तू पौंड दे विच सारी रात खड़ा रही तो मैं तेनों इस बदले 2000 सोने के सिक्के देवांगा। द पुअर ब्राह्मण नीडड मनी, उस गरीब ब्राह्मण नूं पैसे चाहिए सी। ही हैड नो चॉइस, उस कोल कोई भी चारा नहीं सीगा। ही स्टूड इन द फ्रोजन पौंड ऑल थ्रू द नाइट, वो सारी रात उस पौंड दे विच, उस तलाब दे विच खड़ा रहा। ऑल थ्रू द नाइट शिवरिंग, शिवरिंग का अर्थ है कंबदे हुए। सो पौंड का अर्थ की हो गया, पौंड का अर्थ हो गया तालाब, और शिवरिंग का अर्थ हो गया कंबना, कंबदे हुए खड़ा रहा। सो इट वॉज इन द मॉर्निंग ही रिटर्न टू अकबर्स कोर्ट टू रिसीव हिज रिवार्ड ऑफ 2000 गोल्ड कॉइन। सारी रात खाने तो बाद जो बच्चे वो अपना इनाम लैन अगली सवेर कचहरी दे विच आया। द किंग आस्क्ड द ब्राह्मण, हाउ कुड यू स्टैंड इन द फ्रोजन पॉन्ड इन सच एन एक्सट्रीम टैंपरेचर। भी तू इन्ने घट तापमान ते उस पानी विच किस तरह खड़ गया। द इनोसेंट ब्राह्मण रिप्लाइड, इनोसेंट तो भाव भोला निर्दोष, वो भोला भाला सी। उन्हें उत्तर दिता, आई कुड सी द फेंटली ग्लोइंग लाइट ऑफ द पैलेस माइल्स अवे। कहता 1 मील दूर जिहड़ी सी लाइट सीगी पैलेस दी, वो मग रही सी, जग रही सी। दैट वाज आ रे ऑफ होप फॉर मी, उही मेरे लिए आस की किरण सी। रे ऑफ होप का अर्थ हुंदा आस की किरण होना, आस की किरण सी, आस की किरण सी। I kept looking at the light, thinking about my family that they will get food if I continue to stand in the pond। मैं कहता उस लाइट वाल देखता रहा, यह सोच के कि मेरे परिवार नूं खाना मिलूगा खाण वास्ते जे मैं सारी रात खड़ा रहा। अकबर ने जो ये गल सुनी तो अकबर सडनली बिकेम वेरी स्टर्न, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा की हो गया बच्चों, गंभीर हो गया, वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया, सख्त हो गया। सख्त होना, गंभीर होना। ही सैड हार्शली, उन्हें बड़े गुस्से ना किया, ओ ब्राह्मण यू हैव चीटड मी, तू मेरे नाल धोखा किया। आई विल नॉट गिव यू ए रिवार्ड फॉर दिस, आई विल गिव यू एनी रिवार्ड फॉर दिस, मैं तेनू इस बदले कोई भी इनाम नहीं दूंगा। यू लुकड एट द पैलेस लाइट एंड गॉट वार्मथ, तू पैलेस की लाइट है जी महल की लाइटा वाल देख के गर्मी लई आ। यू डोंट डिजर्व दिस रिवार्ड, तू इस इनाम के योग नहीं है। सो ये गल सुन के बच्चों वो गरीब ब्राह्मण सीगा बहुत ज़्यादा निराश होया। बीरबल ने भी राजे नूं समझाउण दी कोशिश की। बीरबल सैड, योर मैजेस्टी इट इज़ नॉट पॉसीबल टू गैट वार्म फ्रॉम द लाइट ग्लोइंग सो फार अवे। भी इन्नी ज़्यादा दूर जिहड़ी लाइट चल रही सी उस तो गर्मी नहीं लेती जा सकती सी, उस तो गर्मी नहीं ली जा सकती सी। गेट वार्म फ्रॉम द लाइट ग्लोइंग सो फार अवे, अकबर डिड नॉट लिसन, पर अकबर ने किसी दी नहीं सुनी। हाउ कुड द पुअर ब्राह्मण आर्ग्यू विद द एम्परर, ये गरीब ब्राह्मण जिहड़ा एक राजे नाल किस तरह बहस कर सकदा। आर्ग्यू मीन हुंदा आ बहस करना। He returned disappointed and bare-handed from Akbar's court। वो अकबर की कचहरी दे विचों खाली हथ ते निराश
डिसपॉइंटेड का अर्थ हुंदा निराश, निराश। बेयर हैंड हुंदा आ खाली हथ, चला गया। द नैक्सट डे बीरबल डिड नॉट गो टू अकबर्स कोर्ट। अगली सवेर जिहड़ा सीगा अगले दिन बीरबल कचहरी दे विच नहीं आया। ही सेंट अ मैसेंजर टू द एम्परर saying that he would come to the court only after his खिचड़ी get cooked। भी कचहरी दे विच तद ही आऊगा जद उहदी खिचड़ी जिहड़ी आ पक के तैयार हो जूगी। बीरबल डिड नॉट टर्न अप even after 5 days। वो 5 दिन लंघ गए बच्चे, जदों वो 5 दिन लंघण तो बाद भी कचहरी दे विच नहीं आया। The emperor himself went to Birbal's house to see what he was doing। तद जो एम्परर सीगा, राजा सी, वो खुद ਉਹਦੇ घर गया देखण वास्ते भी वो की करदा है। He saw Birbal had lit fire and kept the pot of uncooked खिचड़ी 1 yard above the fire। ਉਹਨੇ देखिया बीरबल ने अग चलाई हुई सी, अग मचाई हुई सी घर दे विच, ते उस अग दे उपर 1 यार्ड, 1 यार्ड तो भाव 1 गज जिहड़ा 3 फुट के बराबर हुंदा, 3 फुट दूरी के उपर उहने वो मटकी जिहड़ी सी रखी हुई सी, पॉट, अग जिहड़ियां लाटां सी लप तो भी 3 फुट दूर उहने उपर पॉट जिहड़ी सी टंगी हुई सी। Akbar said, Birbal, I consider you to be the wisest in the country। भी मैं तो तेनू समझदा सी भी तू सारे देश दे विचों सब तो सियाणा है। बट यू हैव प्रूवड मी रॉन्ग, पर तू तो मैनू गलत साबित करता, पर तू तो मैनू गलत साबित करता। Birbal said, Why your majesty? क्यों महाराज? Akbar said, How will the खिचड़ी get cooked when it is 1 yard above the fire। भी खिचड़ी किस तरह बनूगी जदों कि अग तो यह काफ़ी ज़्यादा किया उपर है, अग तो काफ़ी ज़्यादा उपर। What is wrong with you बीरबल? भी तैनू की हो गया है? बीरबल kept stirring the pot। बीरबल उस पॉट दे विच कड़छी जिहड़ी घुमाउंदा रहा। and reply दिता, Oh my great emperor, when it is possible for a person to receive warmth from faintly glowing light a miles away, then it should be possible for the खिचड़ी which is just a yard above the fire to get cooked। भी महाराज जदों एक जिहड़ा व्यक्ति आ 1 मील दूर जिहड़ी आ बहुत मध्यम जी चलदी लाइट आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गर्मी लै सकदा, तां आ खिचड़ी तां केवल 3 फुट दूर ही है, 1 गज दूरी ते ही है, ये तां पक्कूगी। अकबर रियलाइज हिज मिसटेक। ये गल सुन के अकबर नूं अपनी गलती का एहसास हो गया। हे कॉल्ड द पुअर ब्राह्मण, उन्हें उस गरीब ब्राह्मण नूं बुलाया। गेव हिम 2000 गोल्ड कॉइनस, उसनूं 2000 सोने के सिक्के दिते। अकबर वाज हैप्पी, अकबर हुण खुश सी। क्यों खुश सीगा? दैट बीरबल हैड हैल्पड हिम टू रियलाइज हिज मिसटेक, कि बीरबल ने उसकी गलती का एहसास कराउण लई उसकी सहायता की है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह जिहड़ा बीरबल ने एक ब्राह्मण जिहड़ा सी उसनूं तां जिहड़ा न्याय दवाया ही सीगा, जस्टिस कीता सी उहदे नाल अपने जिहड़े राजे नूं भी हैगा उहदी गलती का एहसास करवाया सी। ते बीरबल अकबर दा बहुत ही चलाक, समझदार ते हाज़र जवाब मंत्री सी। सो तुहानूं कहानी वधिया लगी होनी आ। हुण असीं इस कहानी दे नाल संबंधित जो भी
एक्सरसाइजेज ने वो करांगे। सब तो पहले जो एक्सरसाइज है वो साडे कोले वोकैबलरी एक्सपेंशन आपां करनी आ, अपने शब्द भंडार दे विच वाधा करना आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸਿਸ ਤੇ ਸੁਫਿਕਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸਿਸ ਸੁਫਿਕਸਿਸ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਸੁਫਿਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਪਿਛੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਸੁਫਿਕਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਛੇਤਰ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਨਕੁਕਡ। ਕੁੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਈਡੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਐਡ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅਨਕੁਕਡ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸਿਸ ਐਂਡ ਸਫਿਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੈਟਰ ਦੈਟ ਕਮ ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਡਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਵਿਚ ਮੇਕ them longer, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जाम्पल ਸੁਫਿਕਸ ਜੋ ਪਿਛੇਤਰ ਆ er ਐਡਡ ਟੂ ਲੌਂਗ ਚੇਂਜ ਇਟ ਟੂ ਲੌਂਗਰ। ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੌਂਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮ ਬਿਫੋਰ ਦ ਮੇਨ ਵਰਡਸ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਫਿਕਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ। ਜਨਰਲੀ ਮੇਕ them ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਲਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੈਪੀ ਦਾ ਅਨਹੈਪੀ, ਖੁਸ਼ ਉਦਾਸ। ਅਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਇੰਡ ਅਨਕਾਇੰਡ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫॉर एग्जाम्पल ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅਨ ਕੈਨ ਮੀਨਸ ਨਾਟ। ਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਐਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅਨ ਟੂ ਵਰਡ ਹੈਪੀ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਵਰਡ ਅਨਹੈਪੀ ਵਿਚ ਮੀਨ ਨਾਟ ਹੈਪੀ। ਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਨਾਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਨ, ਨੌਨ, ਇਮ, ਇਨ, ਇਲ, ਇਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਨੌਨ ਸੈਂਸ, ਹੈਪੀ ਤੋਂ ਅਨਹੈਪੀ। ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਗੇਨ, ਬੈਕ। ਰੀਵਿਜ਼ਟ, ਰੀਪਲੇ। ਮਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ, ਰੋਂਗਲੀ, ਨਾਟ। ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਡੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡੀ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਟ ਹੋਣਾ। ਰਿਮੂਵ ਆਊਟ ਆਫ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਤੋਂ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ। ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ, ਟੂਗੈਦਰ, ਨਾਲ, ਮਿਲ ਕੇ। ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਡਿਸ ਔਰ ਡਾਈ। ਡਿਸ ਔਰ ਡਾਈ। ਡਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਵੇ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਪਾਰਟ। ਜਾਂ ਡਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋ, ਟੂ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਲਾਈਕ, ਲਾਈਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਲਾਈਕ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਡਾਈ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੋ ਐਸਿਡ ਹੋਣੇ। ਡਾਈ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੋ ਐਸਿਡ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਫਿਕਸਿਸ। ਸੁਫਿਕਸਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਛੇਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੁਫਿਕਸਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਛੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ a group of word of letter added to the end of word, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਫਿਕਸ ਡੂ ਨਾਟ ਮੇਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਸੁਫਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਨ, ਨੌਨ, ਇਲ, ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਆਫ ਵਰਡ। ਫॉर एग्जाम्पल ਐਡਿੰਗ ion to the word verb progress give us progression। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ion ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਬ ਤੋਂ ਨਾਊਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਾਊਨ ਵਰਬ ਨੂੰ ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Suffix also tell us the verb tense of word,
verb tense of word or whether they words are singular or plural। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ singular ਆ ਜਾਂ plural। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਆ, ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਲਾਤੀ ਕਾਜ਼, ਸੁਫਿਕਸ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਡੀ ਲਾਤੀ ਕਿਲਡ, ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਫਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਈ ਆਰ ਓ ਆਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਨ ਹੂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੋਇੰਗ ਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਟੀਚਰ ਫਾਸਟਰ, ਏਬਲ ਆਈ ਬੀ ਐਲ ਈ, ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਫੋਰਗੇਟੇਬਲ ਰਿਵਰਸੀਬਲ, ਕਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਏ ਬੀ ਐਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਬੀ ਐਲ ਈ ਲੱਗਦਾ, ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਐਡ ਡ ਔਰ ਈ ਡੀ, ਡ ਔਰ ਈ ਡੀ ਐਡ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਔਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ, ਜਿਵੇਂ ਐਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈ ਡੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਡਡ, ਲਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਵਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਫਾਰਮ, ਇੰਗ ਫਾਰਮ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਏ ਜੈਰੈਂਡਸ, ਜੈਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾउन ਫਾਰਮ, ਮੀਨਿੰਗ ਐਨ ਐਕਟ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਐਕਟ ਆਫ ਔਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਸਵਿਮ ਤੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂਟ, ਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ, ਸਟੇਟ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਅਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਗਵਰਨ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਆਈ ਬੀ ਈ ਸ਼ਬਦ, ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸਿਵ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਫਿਕਸ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਰੋਜ਼ਨ, ਫਰੋਜ਼ ਪਲੱਸ ਐਨ, ਰਿਟਰਨ, ਰੀ ਪਲੱਸ ਟਰਨ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਐਲ ਵਾਈ, ਡਿਸਪੁਆਇੰਟਡ, ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਵਰਿੰਗ ਇੰਗ ਫਾਰਮ, ਸ਼ੀਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਵਾਈਜ਼ੈਸਟ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਆਈ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਿਅਲਾਈਜ਼, ਤੇ ਲੁਕਿੰਗ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੁਕਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ what time of years was it in the story। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਿੰਟਰ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, what had happened to the pond and lakes। ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਕਸ ਤਲਾਬ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ, they all were frozen, they all were frozen। ਕਿਉਂ ਜੰਮੇ ਸੀ, because of extreme temperature, ਬਹੁਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ। what did ਅਕਬਰ want to know। ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, he wanted to know if a man could do anything for money। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Why did Brahmin accept Akbar's challenge। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ, ਹੀ ਨੀਡਡ ਮਨੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
बिकॉज द ब्राह्मण वॉज वेरी पुअर ही नीडेड मनी वेरी बैडली। अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड अकबर एग्री टू गिव टू ब्राह्मण। अकबर ब्राह्मण नूं किन्ने पैसे देण लई तैयार हो गया। हाँ जी, किन्ने पैसे देण लई तैयार हो गया, आप स्टोरी पढ़ी आ। वेरी गुड, हाँ जी, 2000 गोल्ड कॉइन। ही एग्री टू गिव 2000 गोल्ड कॉइन टू द ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन आ जाते ने, किहड़े शब्द कहे किसनू कहे। हू सैड टू होम, हू सैड टू, किहड़े शब्द कहे किसनू कहे। स्टैंड इनसाइड द पॉन्ड, फ्रोजन पॉन्ड ऑल थ्रू द नाइट विदाउट एनी क्लोथ्स, आई विल गिव यू 2000 गोल्ड कॉइन्स। मैं तेनू 2000 सोने दे सिक्के दूंगा। ये शब्द किहने कहे सीगे, हाँ जी, किंग ने कहे सी। किहनू कहे सी, टू द ब्राह्मण। दूसरा, हाउ कुड यू स्टैंड इन द फ्रोजन पॉन्ड इन सच एन एक्सट्रीम टैंपरेचर, भी इन्ने घट टैंपरेचर ते तू सारी रात किस तरह खड़ा रहा। ये प्रश्न पूछा सी, किहने पूछा सी, किहनू पूछा सी, हाँ जी, किंग ने पूछा सीगा। किहनू पूछा सी, टू द ब्राह्मण। किंग सैड टू द ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण यू हैव चीटड मी, ओ ब्राह्मण तू मैनू धोखा दिता। ये शब्द किहने कहे सी ते किसनू कहे सी, राजे ने कहे सी। किसनू कहे सी, ब्राह्मण नू। चौथा, योर मैजेस्टी इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट वार्मथ फ्रॉम द लाइट ग्लोइंग सो फार अवे। ये शब्द किसने कहे सी, किसनू कहे सी, ये बीरबल ने कहे सी राजे नू। बीरबल, आई कंसिडर यू टू द वाइजेस्ट इन द कंट्री बट यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग। ये शब्द किसनू कहे सी, राजे ने कहे सी। किसनू, बीरबल नू। हाँ जी, असी हुण व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट बीरबल इन द स्टोरी। बीरबल बारे साडा की जिहड़ा हैगा इरादा हैगा, साडी की राय है, किदां दा व्यक्ति सी बीरबल। हाँ जी, तुसीं विच स्टोरी तां चंगी तरह पढ़ी आ, तुहानूं सारिਆਂ नूं समझ ही लग जाना। बीरबल जिहड़ा सी बहुत ही ज़्यादा समझदार, चलाक ते एक दयावान जिहड़ा सी दयालू व्यक्ति सीगा। सो बीरबल वाज अ वाइज मैन, एक सियाणा व्यक्ति सी। ही वॉज वेरी इंटैलीजेंट, मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। किंग अकबर दा मंत्री सी, इंटैलीजेंट। ही वॉज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु सीगा। ही हैल्प द पुअर ब्राह्मण टू गैट हिज रिवार्ड, उन्हें ब्राह्मण की सहायता की ताकि वो अपना इनाम प्राप्त कर सके। उन्होंने उहदा इनाम जो बनदा हक सीगा दिवाउण विच उहदी सहायता की। हाँ जी, हुण असीं जिहड़ी अगली एक्सरसाइज आ, एडवर्ब्स। एडवर्ब हुंदे ने जो सानू वर्ब दे बारे दसदे ने, जिमें हार्शली, फेंटली, मेनली, ट्रूली, फ्रैंकली। वो एल वाई आम तौर पर इन्हां शब्दों के पिछे लग्या हुंदा है। द कॉमन थिंग अबाउट द वर्ड अबव इज़ द यूज लैटर एल वाई एट द एंड। द वर्ड्स कैन ईजली बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। शब्द होगा वर्ड प्लस एल वाई। जिमें एग्जाम्पल आ हार्श, हार्शली। वर्ड दैट एंड विद एल वाई आर मोस्टली एडवर्ब। जिहड़े एल वाई जिन्हां दे पिछे लग्या हुंदा मोस्टली वो एडवर्ब हुंदे ने। दे ऐड टू द क्वालिटी ऑफ वर्ब। सानू वर्ब दे बारे, किसी किरिया दे बारे दसना हुंदा, किसी किरिया दे बारे सानू ये दसदे ने भी कोई किरिया जिहड़ी है किद्दां हुंदी है। जिवें मैं कहां ही वॉक्स, वो तुरदा है। की होया, ही वॉक स्लोली, हौली तुरदा है। ही वॉक फास्ट, तेज तुरदा है। किवें तुरदा है, जां वो किवें खांदा है, किवें गाउंदा है। जिवें ही स्विंग स्वीटली, वो मिठा गाउंदा है। भी कोई एक्शन जिहड़ा असीं किवें करदे हां। सो ये जिहड़े एडवर्ब ने, एडवर्ब ऑफ मैनर हुंदे ने। एडवर्ब ऑफ मैनर जिहड़े हुंदे ने उही एल वाई शब्द लैंदे ने। एक्सप्रैशन ऑफ टाइम शो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन। Look at the example. The girls
always get late for the party. Girls always get late for the party. Get late mean लड़कियां हमेशा पार्टी ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੈਟ ਵਰਬ ਆ, ਲੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਐਡਵਰਬ। I usually do yoga every morning. I usually ly वाला शब्द आ गया, do yoga every morning. He is often late for work. Often ਅਕਸਰ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਲੇਟ ਫॉर वर्क, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ often ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਐਡਵਰਬ ਹੈ। My dentist told me to brush my teeth twice daily. 2 ਵਾਰ twice, ਇੱਥੇ twice ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਵਰਬ ਹੈ। ਐਡਵਰਬ ਆ ਮੇਨਲੀ verb such a time, place, manner, frequency, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। हाँ जी, ਹੁਣ डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू 2 पार्ट्स। ये कुछ शब्द ने असी इन्हों 2 भाग च वंडना। जनरल दा जनरली, एप्ट दा एप्टली, स्टर्न दा स्टर्नली, नॉर्मली दा नॉर्मली, सडनली ly, केयरफुली पिछे ly लग जानियाँ, रेयरली ly। ये शब्द इस तरह बनणगे जी सारे, समझ लगी जी। हुण असी एडवर्ब जिहड़े वरतने ने। अकबर स्पोक, किमें बोलिया, सर्टनली, फेयरली, स्टर्नली, ट्रूली, क्वाइटली। गुस्से नाल बोलिया सी ना स्टर्न, तो आ जाएगा इत्थे स्टर्नली। द एग्जाम वाज फेयरली ईजी। बीरबल वाज ट्रूली वाइज। वी शुड सर्टनली टेक लीव फॉर मंथ्स। द स्टूडेंट सैट क्वाइटली, चुप करके बैठ गया। आफ्टर द टीचर स्कोल्डड हिम, जो टीचर ने उसनों डांटिया। हुण असी अगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करना है। करैक्ट जिहड़ा हैगा ऑप्शन उहदे विच भरना है। आई डैश लेट ऑन वीकेंड। वीकेंड हुंदा भी हफ्ते का अंत, सैटरडे संडे का दिन हुंदा आ। आई, हाँ जी, की आऊगा, गेट अप यूजली, I get up usually up, I get usually up, I usually get up, I up get usually। केड़ा ठीक है इन्हां चों? हाँ जी, I usually get up। C शब्द जिहड़ा हैगा वो ठीक है। हाँ जी, उस तो बाद असीं आए ने my father dash late for work। never is never, are never, were never। my father is never। how dash on weekend। How often do you travel? How do you often travel? How often you do travel? How often does you travel? केड़ा ठीक आएगा? हाँ जी, how often do you travel on a weekend? भी हफ्ते च कितनी बारी तुसीं ट्रैवल करदे हो। Tim dash early for class। Tim is often early for class, हमेशा पहला जांदा आ। when do you dash go to vacation each year। when do you usually go on vacation। usually ना आम तौर ते तुसीं vacation ਲਈ कदों जाने हो, each year। सो हुण साडे कोले पेयर वर्क आ। द फॉलोइंग ग्रिड हैज़ सम ly वर्ड। थले जो ग्रिड बनया होया इहदे विच बहुत सारे शब्द जिहड़े ने आलमोस्ट 10 ने जिहड़े उन्हां विच ly वाले वर्ड ने, असीं उन्हां नूं चूज़ करनी आ। हाँ जी, ध्यान नाल करो ये एक्सरसाइज। देखते हैं पहला सर्टनली, एप्टली, कॉस्टली, एंडलेसली, फ्लैटली, हैप्पीली, हाँ जी, यूजुअली, मॉरली, हाँ जी, डेली, मंथली,
तो एक लास्ट शब्द हैगा श्योरली। असी सारे शब्द लिखते द्वारा सर्टनली, कॉस्टली, एंडलेसली, हैप्पीली, यूजली, श्योरली, मॉरली, मंथली, डेली और फ्लैटली। हुण असी करना काम जो साडे कोल हैगा डायलॉग राइटिंग। डायलॉग किवें लिखे, डायलॉग किवें लिखे जाते हैं भी एक व्यक्ति बोलता फिर दूजा उहदा उत्तर दिंदा। डायलॉग राइटिंग लिखण वास्ते असी जो मेन यूज़ करते हैं, देखो पहला आपां एक पेयर पढ़ते हैं, अकबर ब्रैकेट स्टार टू बीरबल। अकबर ने बीरबल नूं कहा तो इत्थे कॉलन लग्या होया, की लग्या जी कॉलन, दो बिंदु जो होंदे ने। टेल मी वन थिंग कॉमा बीरबल, डू यू थिंक ए मैन विल डू एनीथिंग फॉर मनी। पिछे क्वेश्चन मार्क तो पिछे इन्होंने ब्रैकेट क्वेश्चन पाउणा भी, क्वेश्चन क्या आ, ये हुक्म दिता या स्टेटमेंट। ये विच असी कुछ रूल्स ने वो दस दिंदे आ। पहला तो कॉलन लाउणा ते ब्रैकेट्स पाउणा भी किहने शब्द किहनूं कहे ने। जो कहा गया शब्द आ, कहा गया वाक को दसना भी ये क्वेश्चन आ, स्टेटमेंट आ, ऑर्डर आ, उन्हें प्यार नाल कहा जां गुस्से नाल कहा। हाँ जी, किहड़ियां गल्लां ध्यान रखना सी। डू यू डू नॉट यूज़ वर्ड सच एज सैड, आस्क, रिप्लाइड, टोल्ड एक्सेट्रा। ये शब्द असी नहीं वरतने, उन्हें थां ते वरतना कला टू। की वरतना टू। इंस्टैड यू यूज़ टू इट्स प्लेस, उन्हां दी जगह ते टू वरतना। तो कॉलन की असी वरतों करनी, किहदी वरतों करनी असी कॉलन की। यू यूज़ कॉलन आफ्टर एड्रैस, एड्रैस ही पुट इन राउंड ब्रैकेट। जो एड्रैस ही राउंड ब्रैकेट पाता तो असी की लाउणा आ कॉलन लाउणा। यू डू नॉट यूज़ इनवर्टेड, ये असी इनवर्टेड कॉमे नहीं यूज़ करते, इनवर्टेड कॉमे नहीं वरतते। फॉर वट द स्पीकर हैज़ टू से, असी इसकी उदाहरण जी ही करते हैं अगे। अकबर सैड बीरबल, आई कंसीडर यू टू बी द वाइजेस्ट इन द कंट्री बट यू हैव प्रूवड मी रॉन्ग। ये जिहड़ा हैगा डायरैक्ट वर्ड्स ने, डायरैक्ट सेंटेंस आ, ये इनवर्टेड कॉमे पाए हुए ने। पर असी जदों इसनूं चेंज करना डायलॉग दे विच असी नहीं पाउणे, असी लिखांगे अकबर किहनूं क्या है, ब्रैकेट पावांगे टू बीरबल नूं क्या, पिछे कॉलन, इनवर्टेड कॉमे हटा देने जी। बीरबल, आई कंसीडर यू टू बी द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री बट यू हैव प्रूवड मी रॉन्ग, पिछे ब्रैकेट लिख देना भी ये स्टेटमेंट। पिछले इनवर्टेड कॉमे भी हटा देने, स्टेटमेंट लिखने। बीरबल सैड वाई यू योर मैजेस्टी, बीरबल ने कई शब्द किहनूं ने टू द अकबर, वो ब्रैकेट पाउणा, उस बाद कॉलन। वाई योर मैजेस्टी, इनवर्टेड कॉमे हटाते जी। फिर पिछे असी लिखना आ क्वेश्चन, की लिखना है असी क्वेश्चन। थर्ड स्टेटमेंट, अकबर सैड, अकबर सैड, अकबर ने किहनूं कहा, हाउ विल खिचड़ी गैट कुकड वैन इट इज़ मीटर अवे अबव द फायर, वट इज़ रॉन्ग विद यू बीरबल। अकबर ने किहनूं कहे ने, बीरबल नूं। उदों बाद असीं इनवर्टेड कॉमे हटा के कॉलन लाने ने, बाकी सारा उस तरह ही लिखना। बाद दे विच असीं की लाउणा आ क्वेश्चन लिख देना भी, क्वेश्चन। उदों बाद वट इज़ रॉन्ग विद यू बीरबल, ये भी जिहड़ा हैगा क्वेश्चन हैगा। इस तरह असीं अपने जिहड़े डायलॉग वो लिखने ने। हुण असीं जिहड़ा एक पैराग्राफ लिखना आ, अ विजिट टू हिल स्टेशन, अ विजिट टू हिल स्टेशन। पैराग्राफ लिखण दा तरीका की आ, सब तो तरीका हुंदा बेटा क्वेश्चनिंग आंसरिंग। क्वेश्चनिंग आंसरिंग, क्वेश्चन आंसर हुंदा आ, जिमें वेयर डिड यू गो, तुसीं कित्थे गए सी, वेयर डिड यू गो, तुसीं कित्थे गए सी। पहला ही आंसर लिखता आई वेंट टू शिमला। एक तस्वीर जिहड़ी हैगी है शिमले दी, असीं देख सकते हैं। हू डिड यू गो विद, तुसीं किस नाल गए सी, इहदा उत्तर दो आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता नाल गया सी। हाउ डिड यू रीच देयर, तुसीं उत्थे किवें पहुंचे, आई रीच देयर बाय ट्रेन, मैं उत्थे ट्रेन राही पहुंचा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, इन्हें कितना समा लता ट्रेन ने,
तो ट्रेन ने कितना समय लगता, इट टुक 5 आवर्स टू रीच देयर, उत्थे पहुंचण वास्ते 5 घंटे का समा लैता। वेयर डिड यू स्टे, तुसी कित्थे ठहरे, वी स्टेड देयर इन ए होटल, असी उत्थे एक होटल दे विच ठहरे। वाट डिड यू डू ड्यूरिंग द डे, दिने तुसी उत्थे की कीता, वी विजिटड माल रोड, असी माल रोड गए, जाखू टैंपल गए, एंड लक्कड़ बाज़ार गए। वाई डिड यू, वट डिड यू डू एट नाइट, तुसी रात नूं की कीता, वी स्ट्रोल्ड इन द मार्केट, असी मार्केट जिहड़ी सी उत्थों दी उत्थे घुमे। हाउ वाज द ट्रिप, थोड़ी ट्रिप जिहड़ी सी शिमले दी किवें सी, इट वाज वेरी फन फील्ड, भी बहुत मज़े वाली जिहड़ी सी मज़ेदार ट्रिप सी। सो ये सारे जिहड़े वाक लिखे ने वो असीं चक के थल्ले जिहड़ियां लाइनां ने इत्थे लिख देने, इन्हां साडा जिहड़ा पैरा बन जाएगा जी। हाँ जी, प्यारे बच्चों, अज असीं जिहड़ियां सारियां एक्सरसाइज़ ने लैसन नाल संबंधित कीतियां ने, आस करदे हां तुहानूं इस लैसन दी समझ लगी होनी आ। ते फिर भी अगर तुहानूं कोई इस संबंधी कोई समस्या है, तुसीं मैनूं जिहड़ा हैगा ਇਹਦਾ YouTube ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।